So, hello Hina. Say hi to our Hello. viewers. I'm First fine. of all, very warm welcome. And today, this session, we will be discussing what people are very excited to know how you cracked your net, and also some bit about preparation strategies which will help them to crack them in future. So to Yes. begin, I would like to know just a little about yourself, your educational background, and how has your journey been? Okay. So I'm starting with my introduction. My name is Hina Jain. I've done my graduation and post graduation from Somaya College, that is KJ Somaya College of Arts and Commerce. So I am from Mumbai, Maharashtra. And currently I have passed my NET exam in commerce, and even have qualified Maharashtra SET exam that was held in 2020. Okay, that's really great. And also, if you can talk some bit about how difficult the entire journey of net has been. Okay, so I would like to clear out over here that if you think that net is difficult, if you develop that mentality in your mind, then definitely it will be very difficult for you to clear it out. So first of all, stop thinking that it is difficult. Go with the flow, regularly study and practice MCQ. It will help you a lot. And talking about the difficulty level, yes, NTA is maintaining its level of difficulty because the candidates applying on it is around 10 lakh. So it has to maintain its level of paper. So we can crack it if we are focused on our studies. Okay, a few things I would like to know regarding if I tell you paper one and paper two, what has that been your strong paper like? For me, it was commerce because I like to involve in commerce subjects a lot. So paper one is like something which in future will won't help me. So going to a teaching background, so commerce should be a base for a teacher. Very true. If you can tell like a bit more about paper two, commerce, as in Okay. which unit of yours have been strong, and what did you do about the weaker ones? As in there are 10 units for a novice someone to go about, जिन्होंने ये एग्जाम पहले कभी नहीं दिया है, तो वो डिफिकल्ट यूनिट्स को कैसे टैकल करे या फिर इजी यूनिट्स को कितना वेटेज दे, अगर इफ यू कैन टेक दिस वन. ओके, सो अगर मैं क्लियर आउट करूँ तो एनटीए ने अभी कुछ ऐसा उनके तरफ से रखा नहीं है 10 यूनिट से, तो उन्होंने कोई प्रॉपर वेटेज रखा नहीं है अब यूनिट के लिए. तो मेरा मानना यह है कि जो आपका इजी यूनिट आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से उसके अंदर स्कोर कर सकते हो, उसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है. एकदम क्लियरली उसको थरोली पढ़ लेना है और उसके बाद में एमसीक्यू लगाओ. जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अंदर ही अंदर कि हाँ, मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं एमसीक्यू भी कर पा रही हूँ. और अगर डिफिकल्ट टॉपिक की बात करूँ तो मेरे लिए टैक्स डिफिकल्ट था. और अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो हमने बीकॉम में भी पढ़ा था, तो वो अराउंड फुल ईयर का हमें तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी थोड़ा बहुत अभी आ गया है, तो 1 साल का कोर्स वो हमें 1 यूनिट में दे रहे हैं. तो वो कंप्लीट करना बहुत ही मतलब बोलते हैं ना डिफिकल्ट होता है. तो मैंने टैक्स का ऐसे किया था कि मैंने टैक्स को पूरा नहीं कवर किया था, मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया था और जो भी प्रैक्टिस एमसीक्यू होते हैं वो थोड़े बहुत किए थे. तो वो हार्ड टॉपिक था मेरा. और इजी टॉपिक में कहूँ तो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो मुझे पहले हार्ड लगता था बट मैंने उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो अब मुझे वो अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग हो गया है मेरे लिए. ग्रेट. स्टैटिस्टिक्स इजी हो गया है मेरे लिए, पहले मुझे डिफिकल्ट लगता था. Okay. So if you can share like few resources you have used for your paper two specifically. सो पेपर 2 के लिए अगर मैं कहूँ तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब वीडियोस फॉलो किया था, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था, मैं अवेयर नहीं थी कि कहाँ से क्या फॉलो करना है. और कॉलेज लेवल पे इतना कोई बताता भी नहीं है आपको कि आपको कहाँ से क्या करना है. हाँ, बुक जरूर बता देंगे ऑथर्स की, बट अगर मैं कहूँ तो बुक्स कुछ इतने यूजफुल नहीं है. वो सब आपको आइडिया देगी कि ये टॉपिक है और एक इंट्रोडक्शन दे देगा. बट अगर आपको इन डिटेल जाना है तो आपको वेरियस अलग अलग ऑथर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि एचआरएम की अलग बुक ले लो, मार्केटिंग की अलग बुक ले लो, तो ऐसे यूनिट वाइज अलग अलग बुक आपको खरीदनी पड़ेगी. ठीक है, वो एक आपको हेल्प कर सकता है यूनिट कवर करने में. Okay, so you will not suggest a single book name, because many students keep asking that they want a single comprehensive book. So मैंने अरिहंत की बुक yeah. पढ़ी नहीं थी, मुझे नॉलेज नहीं था,
ठीक है। अब मैं गई शॉपकीपर के पास, मैंने उनको बोला कि यार मुझे पेपर 2 के लिए चाहिए बुक। तो फर्स्ट उन्होंने मुझे प्रगति पब्लिकेशन दिया था, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र में वही पहले चलता था। तो वो बुक मैं लेके आई, पर मुझे खुद को ही लगता था कि यार कुछ है ही नहीं कंटेंट। देन आई स्विच टू नेक्स्ट बुक। तो उन्होंने बोला अरिहंत लेके जाओ आप। तो अरिहंत भी लिया, बट मुझे यही लगा कि वो इतना नॉलेज नहीं देता है, सिर्फ ऊपर ऊपर का बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, और उनके एमसीक्यूज के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते हो। फ्रैंकली स्पीकिंग आंसर्स गलत है उसमें। फिर मैंने गूगल को अपना एक जरिया माना, वहां से मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट किया। देन अनअकैडमी पे फॉलो किया। फिर ग्रेड अप, ऐसे अलग अलग वेबसाइट है। फिर लास्ट ईयर ही डाइव टू लर्न आपका भी ऐप लॉन्च हुआ था। तो जैसे कि मैंने उस पर भी देखा, तो उस पर भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मिले मुझे। तो पेपर 1 के ऐसे एमसीक्यूज थे जो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखे, कोई भी जगह पे मुझे नहीं दिखा। तो वो आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज देखने को मिले, तो मैंने वहां से भी बेनिफिट लिया। Okay, so you have followed a mix of your Google, if I have to sum up your strategy, and your graduation, post-graduation books, as well as you have followed YouTubers, various resources you have followed. Great, great. So just a question, like, didn't you feel like in the era of content overload, where there is so much content available all over, especially for commerce subject, did you feel dilution कि अभी क्या पढ़ूं या बहुत पढ़ लिया है, ऐसा स्टेज आया था आपके प्रिपरेशन में? बहुत ज्यादा। फर्स्ट तो मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि यूनिट कौन से स्टार्ट करूं मैं, वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। तो मैंने क्या किया, हम लोग गेम खेलते थे बचपन में, वो चिट्स बनाने वाला। तो मैंने ऐसे 10 पेपर 1 की बनाई और 10 पेपर 2 की बनाई। अब जो वो चिट में से पहले आता था, मैं उसको ही स्टिक कर देती थी और वही कंप्लीट करती थी। तो उससे मैं कंफ्यूजन में भी नहीं रहती थी मुझे कौन सा यूनिट उठाना चाहिए, और मेरा काम भी हो जाता था। Okay. Also for someone who does not know anything about net, जिसको कुछ भी पता नहीं और बिल्कुल starting से जो है preparation कर रहे हैं, what do you think will be ideal time for a paper 1 or entire if you talk about your preparation journey, कितना time जो है ideally किसी को devote करना चाहिए जो बिल्कुल basic से preparation start कर रहा है? अच्छा, एकदम बेसिक लेवल जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या मैं ऐसे कहूँ जो एक एवरेज स्टूडेंट हो, मतलब नहीं है नॉलेज, कॉलेज लाइफ ऐसे ही निकल दी, अब लग रहा है कि टीचिंग करनी चाहिए आगे जाके, तो उनके लिए मैं अगर कहूँ तो कम से कम उनको 8-10 महीने लगेंगे, कम से कम। क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर 1 भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपका पेपर 2 जो आप पढ़ते आए हो उसको भी इन डिटेल पढ़ना है। उसके अलावा पीवाईक्यूज करने हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, बहुत कुछ करना है। तो उसमें टाइम जाता है। और फिर जब आप ये सब स्टेजेस पे पहुंच जाते हो, तो मॉक टेस्ट मस्ट है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। So syllabus is so vast, like you said. So any specific advice to your learners you want to give guidance, as in क्या चीजें वो cover करे और what not to study, if you can throw some light on that also, that this bit they think that they can skip. ओके, मैं स्किप का ऐसे कहूंगी कि जो यूनिट आपको बहुत ही ज्यादा टफ लगती है, उसके आप सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो विद एक्सप्लेनेशन। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे ना, तो पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चन होते हैं उनके ही ऑप्शन ज्यादातर क्वेश्चन बना के आइदर मैच द फॉलोइंग या असर्शन रीजन में या इस तरीके से वो पूछ लेते हैं। तो जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो आपको ऐसे आपके एग्जाम में हेल्प कर देगा। इजी है वो तो आप वैसे ही कवर करने वाले हो। So paper 1 strategies and resources, if you can throw some inputs on that also, like paper 1 specifically what you have followed. So for me पेपर 1 स्ट्रेटेजी वाज लाइक कि मैं दिन के 2 आवर्स देती थी पेपर 1 के लिए, ठीक है, और दूसरा पेपर जो पेपर 2 कॉमर्स है उसके लिए ज्यादा टाइम देती थी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कॉमर्स सिलेबस वास्ट है, तो पेपर 1 कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है, और उसमें भी कैसे कुछ यूनिट्स ऐसी होती थी जो मेरे समझ के बाहर थी, जैसे पीपल एंड एनवायरमेंट। मुझे कभी वो नहीं जमा पीपल एंड एनवायरमेंट, तो मैंने उसको स्किप कर दिया डायरेक्टली। सिर्फ उसके क्वेश्चंस देखा करती थी थोड़े बहुत कि अगर आ गया बाय लक तो हो जाएगा अपना काम। और उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर अभी की मैं बात करूं एनटीए के लेवल पे, तो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फोकस करने के लिए। रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, तो इनके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे सिलेबस में दिया है वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा आपको पास्ट ईयर के पेपर्स उठा के कैसे नए नए कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं उनके ऊपर जरा सर्च करके आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं कम्युनिकेशन की बात कर लूं, तो हर अटेम्प्ट में वो लोग नए नए टर्मिनोलॉजीज लेके आ रहे हैं। अब वो कहाँ से लाते हैं वो पता नहीं, बट हमारे लिए एवरी टाइम वो न्यू हो जाता है।
यस यस, एवरी ईयर हम जो देख रहे हैं पैटर्न, वो आपको एक बढ़ता हुआ है, मिलता जा रहा है। हर साल जो है पैटर्न में चेंजेस अभी इस देखने को साल मिल रहे में हैं। आपको पता था कि इंडियन पेपर वन में पर्टिकुलरली, या गो अहेड प्लीज। हाँ, इंडियन लॉजिक के ऊपर इस बार क्वेश्चंस काफी देखे गए थे, हर अटेम्प्ट में लगभग पूछा गया था। तो सो वो दीज एक आर न्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स। हो जाता। तो मैंने इंडियन लॉजिक आपके पास से ही किया था, डाइव टू लर्न से, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, मेरे क्वेश्चंस बन भी गए थे एग्जाम में। इंडीड आवर प्लेजर। सो इंडियन लॉजिक के अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन को लेके स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपने कहाँ से किया था, मैं जानना चाहूंगी। इंटरप्रिटेशन का देखो कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे भी नहीं जमता था शुरू में, जब मैंने किया हमके यार क्या है, जब एग्जाम में आएगा कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जाएगा। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे मार्क्स अगर यहाँ पे कम पड़ गए ना, तो वो मेरा नेट जेआरएफ में दिक्कत पैदा कर देगा। तो मैंने ये किया कि मैंने खुद का एक चैनल था, आपको पता होगा उसमें, तो मैं डेली ना वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजा करती थी डीआई के ऊपर, और आरसी का भी भेजा करती थी। तो उससे एक हैबिट बन गई कि एक डीआई और एक आरसी करना है, तो उससे आपको हैबिट होती है और स्पीड बढ़ती है आपकी सॉल्व करने की। तो अभी ऐसा नहीं है कि सबको डीआई इजीली आ जाता है सॉल्व करना। आपको नहीं आता, आप सॉल्यूशन देखो और फिर उससे सॉल्व करो, और स्टार्ट करो एकदम जीरो लेवल से, जैसे कि एवरेज निकालना हो, रेशियो निकालना हो, ठीक है, फिर ईयर्स का कुछ ऐसे पूछा हो डिफरेंस, वो निकालना हो। स्टार्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चन से करो। एक बार अगर आपका हाथ जम गया उसमें, फिर आप पास्ट ईयर के पेपर्स के जितने भी डीआई आए हैं उनको कर लो, बस तो काम हो जाएगा आपका। That's a really great input, as in we have to be consistent in our studies. Every day practicing DI and every day practicing RC has helped you. Also regarding your channel, you have been consistent. So teaching is another way of learning that you have followed even during your preparation. So that is really a great strategies which a learner can follow. So thank you, Hina. Thank you for your time. Hope these valuable inputs will help future aspirants to crack NET. And I wish you all the best for your future endeavors. Yeah. Thank you, Anything, if you ma'am. want to sum up your strategies, we would like to hear in one line. If you want to sum up one last tip of advice, if you can share. ओके, सो आई वुड लाइक टू से कि आपके लाइफ में डिस्टरबेंस बहुत आएगी, डीमोटिवेटेड आप बहुत फील करोगे, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। बट आपको एक चीज आपके माइंड में रखना है, चलो टाइम वेस्ट हो गया उस दिन, बट अगले दिन आपको फिर से बैठना है और पढ़ना है, और माइंड में एक ही थिंकिंग रखना है कि मैं मेरा नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी, तभी मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगी और मेरी इमेज पूरे पब्लिक के सामने कुछ जरूर बनेगी। सो ये पॉजिटिव थॉट लेके पढ़ाई करते चलो, सक्सेस जरूर आएगी। That's really a great thought. With this note, we would like to end and wish all the learners who are going to watch this very best, and may they also be successful with your valuable input. Once again, I would like to thank you for your time. Thank you, ma'am.